Students, in this video I'm going to start chapter 6 of term 2nd, right? That is programming language. So the first topic is computer program. A computer program is a set of instructions that directs a computer to perform the task necessary to process data into information. Means a computer program क्या है आपका set of instructions है that directs to the computer how the task will be performed, right? A computer programmer might write these instructions using a programming language. और इन सारी चीज़ों को कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए, कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, वो सारा का सारा डेवलपर आपका क्रिएट करता है, ठीक है, की हेल्प से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, विच आर सेट ऑफ वर्ड्स. प्रोग्रामिंग जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं सेट्स ऑफ words, symbols and codes used to create which a computer can process and execute. Means जो programming language is a set of words, symbols and codes that are used to create, right, information or to follow predefined instructions. According to them, a computer will work. The steps that a programmer uses to build a computer program collectively are called the program developed life cycle. Means जो steps आपके परफॉर्म किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, कंप्यूटर प्रोग्राम को बिल्डअप करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. मीन्स हमने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया है, उसका लाइफ साइकिल क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया और एंड कहाँ पे हुआ उसका, ठीक है. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट. नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स. The next is programming languages and program development tools. A computer programmer can select from a variety of programming languages or program development tools to create solution to information system requirements. ठीक है, एक कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होता है या जो डेवलपर होता है, ठीक है, वो एक वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, उनमें से कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को या किसी पर्टिकुलर टूल को सिलेक्ट कर सकता है, right, to create a program. So a programming language is a set of words, symbols and codes that enable a programmer to communicate a solution algorithm to the computer. Just as humans understand a variety of spoken languages, English, Hindi, French and so on, computers recognize a variety of programming languages. जैसे ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम भी क्या करता है, वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, राइट. अ प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल कंसिस्ट ऑफ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स डिज़ाइन टू असिस्ट इन द creation of information system solutions. These program development tools automatically create the programming language instructions necessary to communicate with the computer. Means यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए. These kind of program development tools automatically create the programming language instructions according to the computer communications. With program development tools, a developer typically does not need to run a programming language. Next is the program development life cycle. What is a program development life cycle? The program development life cycle, or you can say PDLC, is a set of steps that programmers use to build computer programs. Means the kind of steps programmer have to use to build a computer program. Whereas much of the system development life cycle guides some system analyst through the development of an information system. The program development life cycle guides computer programs through the development of a प्रोग्राम. मीन्स जो आपका लाइफ साइकिल है, ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, प्रोग्राम डेवलपमेंट, वो क्या करता है, गाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस टाइप से उनको डेवलप करना है. दिस काइंड ऑफ स्टेप्स आर फॉलो. द फर्स्ट इज डेवलप द प्रोग्राम लॉजिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम. मीन्स डेवलप करना पर्टिकुलर लॉजिक को, ठीक है, जो आपकी
क्या किस में हेल्प करेगी, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। स्टेप 2 इज राइटिंग द प्रोग्राम लॉजिक इन ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस पर्टिकुलर लॉजिक को राइट करना है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। द थर्ड वन इज असेंबल और कंपाइल द प्रोग्रामर टू टर्न इट इनटू मशीन लैंग्वेज। अब असेंबल करेंगे या फिर कंपाइल करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो अभी हमने राइट किया है, डेवलपर ने राइट किया है, ठीक है। वाई वी यूज़ दिस थर्ड स्टेप टू कन्वर्ट द कोडिंग इनटू मशीन लैंग्वेज, क्लियर। स्टेप 4 इज टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। स्टेप 4 में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो हमारा क्रिएट हुआ है प्रोग्राम या कुछ मॉडिफिकेशन हमें अभी भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर द necessary documentation according to the program, right. Next is categories of programming languages. So there are several hundred programming languages exist, each with its own language rules or syntax. Means जितनी भी languages exist करती हैं programming languages, they have own rules or syntaxes. Some languages were developed for specific computers. कुछ लैंग्वेजेस है जो डेवलप की गई हैं स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के लिए, अदर वर डेवलप फॉर स्पेसिफिक यूजेस सच एज साइंटिफिक यूज़ और बिजनेस एप्लीकेशन यूजेस. As previously noted, the American National Standard Institute has standardized some of these languages. Program written in an ANSI standard language thus can run on many different types of computers as well as on many different ऑपरेटिंग सिस्टम्स. मीन्स जो NSI ने जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको स्टैंडर्डाइज़ किया है, ठीक है, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे क्या कर सकती है, रन कर सकती है, राइट. और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी, ठीक है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज. कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 5. मशीन लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज, third generation languages, fourth generation languages and natural languages, right. So machine and assembly languages are referred to as low level languages. मशीन लैंग्वेज जो सबसे स्टार्टिंग में आई थी हमारी, जिसको आपका कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है, जो किस फॉर्म में होती है, 0 and 1, राइट. एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जो असेंबल करने में यूज़ की जाती है. असेंबल मीन्स कन्वर्ट कर सकते हैं हम मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाने के लिए, राइट. सो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस. So the third generation, fourth generation and natural languages are called high level languages. A low level language is written to run on one particular computer. लो लेवल की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वर्क कर सकती है, ठीक है, रन कर सकती है. एंड अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन रन ऑन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. There was a difference between the low level and the high level language. Clear? So guys, what is machine language? We will discuss about the machine language. The only language that the computer directly understands is machine language. That is also called first generation language. Right? Machine language को हम क्या बोल सकते हैं? First generation language, जो सबसे पहले इन्वेंट की गई थी, जिसको सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है डायरेक्टली. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी पर्टिकुलर कंपाइलर की या उसको असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. सो द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यूजेस अ सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स. मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, आई टोल्ड यू दैट द 0 and 1 फॉर्म दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द ऑन एंड ऑफ स्टेट. 1 means on state and 0 means off state, electrical states of a computer. Clear? So the machine languages program runs only on the computer for which they were developed. Means जिसके लिए वो बनाए गए हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम पे ही रन कर सकती है, ठीक है, सिंगल कंप्यूटर पे. One disadvantage of machine language programs is that they are not portable to other computers. ये क्या है, किसी पोर्टेबल मीन्स हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे उसको कैरी करके यूज़ नहीं कर सकते. क्लियर? सेकेंड, एज यू माइट इमेजिन, कोडिंग इन द वंस एंड ज़ीरोज़ फॉर्म ऑफ मशीन कैन बी टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. ऑब्वियसली अगर आपको कोडिंग करनी है एक वर्ड की, ठीक है, तो उसके लिए 0 और 1 की फॉर्म में कोड करना उसको क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी और टेडियस मीन्स
बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्लियर? The next is assembly language, because the assembly language, it is known as the second generation of programming language, because machine language programs were so difficult to write. ठीक है, सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर हमने असेंबली लैंग्वेज को इन्वेंट किया क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज थी वो क्या थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट थी difficult to write. Within assembly language, instructions are written using abbreviation and codes. मीन्स एब्रीविएशंस और कोड्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. एज विद मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ऑफन आर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड आर मशीन डिपेंडेंट. ये मशीन डिपेंडेंट थी और क्या थी, डिफ़िकल्ट थी, बट मशीन लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में कम डिफ़िकल्ट थी. ठीक है. बट दीज आर काइंड ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर ऑफ first generation language and second generation language, but they know both are low level language, right? Machine language and assembly language are of low level languages. So I hope you understand the concept. Thank you, students.